امر بیل کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے علیزہ، شہلا نے عجیب سے انداز میں کہا۔ علیزہ نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، واقعی کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اتنے عرصے سے تم جنید کے گھر آ جا رہی ہو، کیا تمہیں اپنی وجہ سے ہونے والی ان کی پریشانی کا بھی کوئی احساس نہیں رہا؟ وہ ساری گفتگو میں پہلی بار الجھ کر خاموش رہی۔ اسے اگر اس سارے معاملے میں کسی سے شرمندگی تھی تو وہ جنید کے گھر والے ہی تھے، اور کم از کم ان کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے پاس ان کے لیے معذرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ وہ واقعی یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتے جو میں کر رہی ہوں، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوسرا راستہ؟ علیزہ، تمہارے پاس فی الحال ہر راستہ موجود ہے۔ تم اگر اپنے فیصلے پر ایک بار نظر ثانی کرو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ تم اپنے معاملے کو بھی سلجھا لو گی۔ میں کسی معاملے کو سلجھانا نہیں چاہتی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ہر چیز پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہے یا پہنچائی جا چکی ہے، شہلا نے کچھ دیر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم یہی سمجھ لو، زندگی میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا، ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آ جایا جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی عقلمندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے تو۔ اور یہ دونوں خصوصیات میرے اندر نہیں ہیں، یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ آخر تم اتنی ضدی کیوں ہو رہی ہو علیزہ؟ علیزہ نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ اب پھر میرے سامنے تقریر مت کرنا کہ میں پہلے تو ایسی نہیں تھی، اب کیوں ہو گئی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، تم خود ہی یہ سب جانتی ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور مجھے اپنی ہٹ درمی سے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ عادت دیر سے سیکھی ہے، مگر میرے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ دیر آئے درست آئے کے مصداق سے، علیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ شہلا تقریباً 3 گھنٹے اس کے ساتھ سر کھپا کر اگلے دن پھر آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ عمر 10 منٹ کی اپائنٹمنٹ کا سن کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس نے پولیس سروس صرف اس ایبسلیوٹ پاور کے لیے جوائن کی تھی جو کسی پولیس آفیسر کے پاس ہوتی ہے۔ اسے اب یوں لگنے لگا تھا جیسے اس کے پر کاٹ کر آزادی دی گئی ہے۔ ہر گزرتا دن اس احساس کو بڑھاتا جا رہا تھا، اور وہ یہ احساس رکھنے والا واحد آفیسر نہیں تھا۔ اسے اگر بیجا مداخلت بری لگ رہی تھی تو دوسرے آفیسرز کو کرپشن ختم کرنے کے لیے آرمی کا چیک تنگ کر رہا تھا۔ یہ ملک و قوم کی خدمت نہیں تھی جس کے لیے سول سروس میں آتے تھے، یہ 2 4 اور 4 سے 8 بنانے کا فارمولہ تھا جس کو سیکھنے کے لیے لوگ اس میدان میں کودتے تھے، یا پھر کچھ کو وہ اتھارٹی اس طرف کھینچ لاتی تھی جو کسی بھی آفیسر کے پاس موجود ہوتی تھی، اور آرمی بیوروکریسی سے یہی دونوں چیزیں کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اب بعض دفعہ اسے فوراً سروس سے پولیس سروس میں آنے کے فیصلے پر افسوس ہوتا، اور بعض دفعہ سول سروس میں سرے سے آنے پر اگر دوسروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن کر ہی ناچنا تھا تو پھر تو پوری دنیا پڑی تھی، کہیں بھی جا سکتا تھا، کہیں بھی کیریئر بنا سکتا تھا، آخر پاکستان ہی کیوں؟ وہ اکثر سوچتا اور اپنے فرینڈز اور کولیگ سے ڈسکس کرتا رہتا۔ اس ڈسکشن میں حصہ لینے والا وہ واحد نہیں تھا، وہاں ہر دوسرے بندے کے پاس یہی مسائل تھے۔ پاور شیئرنگ آرمی اور بیوروکریسی دونوں کے لیے جیسے گالی کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ آرمی کے بعد اگر ملک میں کوئی دوسرا آرگنائزڈ اسٹرکچر تھا تو وہ بیوروکریسی کا ہی تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے حربوں، ہتھ کنڈوں اور چالوں سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو مات دینے میں کامیاب نہیں رہتا تھا، دوسرے کے پاس پہلے ہی ہر چیز کا توڑ موجود ہوتا تھا۔ دونوں طرف بہترین دماغ اور بدترین سازشی موجود تھے، دونوں طرف بہترین ہوش آمدی اور بہترین درباری موجود تھے، اور دونوں طرف ذہین ترین احمقوں کی بھی بڑی تعداد تھی۔ اس بار پہلی بار آرمی نے سول سیٹ پر کاری ضرب لگائی تھی، اور پہلی بار بیوروکریسی کو واقعی اپنی پاور خطرے میں محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ نے ماذ آرائی کا راستہ اختیار کیا تھا، کچھ نے بغیر کسی حجت کے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عمر پہلی ٹائپ میں شامل تھا، اور دوسری ٹائپ میں شامل ہونے کی تمام کوششوں کے باوجود اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔
वो अगले दिन 10:30 होने वाले अपॉइंटमेंट से 5 मिनट पहले ही कर्नल हमीद के ऑफिस पहुंच गया। ये एक हिफाजती कदम था जो ताख़ीर की सूरत में कर्नल हमीद की तरफ अपॉइंटमेंट कैंसिल न होने से बचने के लिए उठाया गया था। कर्नल हमीद उसे ऑफिस में नहीं बुलाया। उसका पैगाम मिला। उसने उमर की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दी थी क्योंकि वकील पीए साहब कह रहे हैं कि वो बहुत मसरूफ़ हैं। ये तुम्हारे साहब को पहले पता होना चाहिए था। उमर ने नाराज़गी के आलम में पीए से कहा, अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट तय की थी तो उन्हें मिलना चाहिए। अपॉइंटमेंट तो सर मैंने तय की थी, कर्नल साहब ने तो नहीं की थी, वो भी आपने ज़बरदस्ती अपॉइंटमेंट तय करवाई थी। पीए बड़ी दीदा-दिलेरी के साथ तेज़ी से कह रहा था। शायद उसे उमर के लिए कर्नल हमीद से ख़ास हिदायत मिली थी। उमर को उसके सामने बेपनाह दहशत का एहसास हो रहा था। वो आपके लिए पैगाम देकर गए हैं कि आप चाहें तो फ़ोन पर अपनी बात कह सकते हैं, पीए ने उससे कहा। उमर उसके पैगाम के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय वहाँ से निकल आया। अपने ऑफिस वापस आने के बाद उसने अय्याज़ हैदर को फ़ोन किया और उन्हें इस तमाम मामलात की तफसीलात बता दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आदमी मुसालियत नहीं चाहता, उसने तफसीलात बताने के बाद कहा। ये आदमी सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहता है, सिर्फ मुझे अपने सामने झुकाना चाहता है और कुछ भी नहीं। वो तकरीबन फट पड़ा और अब तो मैं दोबारा कभी उसकी शक्ल तक देखने नहीं जाऊँगा। अय्याज़ हैदर कुछ देर खामोशी से उसे बोलता सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, उमर, मैं चाहता हूँ तुम चंद माह की छुट्टी पर चले जाओ। क्या मतलब? वो यकदम ठिठक गया। हाँ, तुम चंद माह की छुट्टी पर चले जाओ। न तुम यहाँ रहोगे न ये मसले पैदा होंगे। मगर मैं क्यों छुट्टी पर चला जाऊँ? इससे मेरा करियर। अय्याज़ हैदर ने उसकी बात काटी। करियर की तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसको देखने के लिए। तुम बस चंद माह की छुट्टी पर चले जाओ। मैं इस तरह अपनी जॉब छोड़कर जाना नहीं चाहता। तुम नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें भेज दिया जाएगा। आपने कहा था मेरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उमर ने उन्हें याद दिलाया। हाँ, कर रहे हैं। तुम्हारी खिदमत वफाकी हुकूमत को वापस कर रहे हैं और वहाँ से तुम भेजे जाओगे बलूचिस्तान, कोयटा। तुमको नहीं मिलेगा और कौन सा और कैसा शहर मिल सकता है उसका अंदाज़ा तुम्हें अच्छी तरह होगा। उमर का दिल डूब गया। वो बलूचिस्तान या सरहद भिजवाए जाने का मतलब अच्छी तरह समझता था। फिर क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम छुट्टी पर चले जाओ? कम से कम छुट्टी के बाद तुम किसी बेहतर पोस्टिंग की उम्मीद तो रख सकते हो। अंकल, 2-4 माह की छुट्टी नहीं चाहता। उमर एकदम संजीदा हो गया। मुझे 2 साल की छुट्टी चाहिए। एक्स पाकिस्तान लीव। किस लिए? बस मैं वाकई इस सब से तंग आ चुका हूँ। अगर छुट्टी पर ही जाना है तो लंबी छुट्टी पर क्यों नहीं? तुम करना क्या चाहते हो इतनी लंबी छुट्टी का? मैं कुछ अरसे से सोच रहा था कि वापस जाकर अपनी स्टडीज़ को दोबारा शुरू करूँ, MBA कर लूँ। उसका क्या फ़ायदा होगा? 2 साल ज़ाया होंगे तुम्हारे, अय्याज़ हैदर ने उसे बताया। होने दे, अभी भी तो मुझे यूँ ही लगता है जैसे मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, उमर ने तल्खी से कहा। मैं इस तरह अपनी टेन्योर पूरी करने से पहले कहीं नहीं जाना चाहता, मगर अब अगर ये मुझे ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर ही देना चाहते हैं तो बेहतर है मैं लंबी छुट्टी पर चला जाऊँ। तुम अब एक बार फिर जज्बाती होकर सोच रहे हो। जॉब में ऊंच नीच होती रहती है। अय्याज़ हैदर ने इस बार बहुत नर्म लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। मेरी जॉब में सिर्फ नीच है, ऊंच अभी तक मुझे नज़र नहीं आई, उमर ने तल्खी से हंसकर कहा। फॉरेन सर्विस में भी तुम इसी तरह मुंह उठाकर भाग गए थे। अंकल, आप जानते हैं मैं फ़ॉरेन सर्विस में किसकी वजह से भागा था? पापा की वजह से, वरना मैं वहाँ बड़ा खुश था, उमर ने उसकी बात काटते हुए कहा। और यहाँ पर तुम आर्मी की वजह से भाग रहे हो। अय्याज़ हैदर ने अपनी बात जारी रखी। हर जगह तुम किसी न किसी वजह से भागते रहोगे तो काम कैसे चलेगा? कैरियर ऐसे नहीं बनता बेटा, बड़े झटके सहने पड़ते हैं। मैं नहीं सह सकता, और कम से कम अब तो नहीं। फ़िलहाल तो हर लिहाज से मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तुम इतनी जल्दबाजी में फ़ैसला ना करो, अच्छी तरह इस बारे में सोच लो, अय्याज़ हैदर ने कहा। अंकल, मैं बहुत अच्छी तरह उसके बारे में सोच चुका हूँ। मैंने आपको बताया है, मैं पिछले कुछ अरसे से सिर्फ इसी के बारे में सोचता आ रहा हूँ। आप प्लीज़ इस सिलसिले में मेरी मदद करें, उसने कतियत से कहा। जब MBA कर लोगे उसके बाद फिर क्या करोगे? पता नहीं, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं जंगीर से इस सिलसिले में बात करूँगा। तुम अभी इस मामले के बारे में एक बार फिर सोचो, उन्होंने उसे फिर समझाने की कोशिश की। आप मुझे छुट्टी दिलवा सकते हैं या नहीं? उमर ने उनकी बात के जवाब में सवाल किया। देखो,
उमर, फ़िलहाल तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2-4 माह की छुट्टी पर जाना बेहतर है। उसके बाद कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद तुम अपनी छुट्टी बढ़वा लेना, क्योंकि अभी फौरी तौर पर तुम पर कोई भी इतनी मेहरबानी नहीं करेगा कि फ़ौरन तुम्हें 2 साल की छुट्टी दे दे। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड खासा ख़राब हो चुका है, इसलिए पहले मैं तुम्हारी 4 माह की छुट्टी मंजूर करवाता हूँ, बाद में उसे देखेंगे। अयाज हैदर ने उसे दो टोक अल्फाज में कहा। ठीक है, आप फ़िलहाल मुझे 4 माह की छुट्टी पर भिजवा दें। उमर उनकी बात मान गया। मैं फौरी तौर पर अपनी छुट्टी की मंजूरी चाहता हूँ। आईजी तुमसे इतना नाखुश है कि वो बड़ी खुशी से तुम्हें छुट्टी पर भिजवाएगा। तुमको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अयाज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। बल्कि वो तुमसे इतना बेजार है कि उसका बस चले तो वो तुम्हारी इस छुट्टी को कभी ख़त्म ही ना होने दे। वो खुद कौन सा बड़ा अच्छा आदमी है, तारीख में उससे ज़्यादा निकम्मा और बुज़दिल आईजी आज तक अपॉइंट नहीं हुआ। उमर ने बड़ी बेबाकी से तबसरा किया। कुछ एहतियात करो, अगर तुम्हारी लाइन अंडर ऑब्जर्वेशन हुई तो ऐसे तबसरों के बाद तुम्हारा क्या हशर होगा, तुम्हें याद रखना चाहिए। अगर वो आपका दोस्त ना होता तो मैं ये जुमला उसके मुंह पर उसके ऑफिस में कह आता। मैं उससे खौफज़दा नहीं हूँ, उमर ने बेखौफी से कहा। तुम कितने बहादुर हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फ़िलहाल फ़ोन बंद कर रहा हूँ, कॉल खासी लंबी हो गई है। तुम अब अपना सामान पैक करना शुरू करो। मैं चंद दिनों तक तुम्हारी छुट्टी के बारे में ऑर्डर तुम तक भिजवा दूंगा, अयाज हैदर ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। फ़ोन का रिसीवर रखकर उन्होंने बेइख्तियार सर को झटका दिया। अपनी कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर वो बहुत देर तक अपनी कनपट्टियों को मसलता रहा। जुनैद के पेरेंट्स आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, समीना ने उसके कमरे में आकर उसे इत्तला दी। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, आप माजरत कर लें, कोई एक्सक्यूज़ दे दें, अलीज़ा ने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद करते हुए कहा। उनसे यही कह देती हूँ कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहती, समीना ने वापस मुड़ते हुए कहा। अलीज़ा खामोश रही। इस सारे मामले में वो अगर किसी से वाकई शर्मिंदा थी तो वो जुनैद की फैमिली और ख़ास तौर पर उसके वालिदैन ही थे। उसने समीना से कुछ नहीं कहा, वो कमरे से निकल गई। अलीज़ा ने किताब को एक तरफ रख दिया। वो पहले भी कुछ पढ़ नहीं पा रही थी और अब उसका जी कुछ और उचाट हो गया था। बेड से उठकर वो स्टीरियो की तरफ आ गई और उसने कैसेट लगा लिया। कुछ देर वो कमरे में टहलती हुई म्यूज़िक सुनती रही, फिर एकदम उसने स्टीरियो को भी ऑफ कर दिया। सिर्फ 2 दिन पहले सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ, और अब सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। वो अब एक अजीब से इज़्तिराब का शिकार हो रही थी। बार बार वो अपने जहन से जुनैद, उसके घर वालों और उसके घर को झटकने की कोशिश कर रही थी और बुरी तरह नाकाम हो रही थी। कमरे के दरवाजे पर एक फिर दस्तक हुई। यस कम इन। उसने रुककर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने वाली नानो और जुनैद की अम्मी थी। लीज़ा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे तवक्को नहीं थी कि जुनैद की अम्मी नानो के साथ यूँ अचानक कमरे में आ जाएंगी। इससे बेहतर था वो उनसे मिलने के लिए खुद बाहर चली जाती। अलीज़ा, मिसेस इब्राहिम तुमसे मिलना चाह रही थी, मैं उन्हें यहाँ ले आई, नानो ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। आप बैठे मिसेस इब्राहिम, मैं चाय यहीं भिजवा देती हूँ, आप अलीज़ा के साथ चाय पिएं। नानो उसके कुछ कहने से पहले जुनैद की अम्मी से मुखातिब होते हुए कहा और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गईं। आप बैठिए प्लीज़, अलीज़ा ने कदरे हकलाते हुए जुनैद की अम्मी से कहा। उसे अंदाज़ा था इस वक्त उसके चेहरे पर कितने रंग आ रहे होंगे। वो सोफे पर बैठ गई। तुम भी बैठो, जुनैद की अम्मी ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कुछ झिझकती हुई उनके पास आकर बैठ गई। जुनैद ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उन्होंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। अलीज़ा उन्हें देखने लगी। उमर को तुम्हारे घर आते हुए बहुत अरसा हो गया है। जुनैद और उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है। पुराने दोस्तियों में बहुत ज़्यादा जज्बात और एहसासात इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैचमेंट बहुत गहरी हो जाती है, और उमर तो हमारे लिए हमारे घर के एक फ़र्द जैसा है। मैं नहीं जानती कि तुम उसे क्यों इतना नापसंद करती हो। यकीनन तुम्हारे पास भी उसे नापसंद करने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास उसे पसंद करने की वजूहत हैं। मगर उमर को तुम्हारे और जुनैद के दरमियान मसला नहीं बनना चाहिए। वो चंद लम्हों के लिए रुकी। जुनैद तुमसे मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत उमर की वजह से नहीं है। अलीज़ा, तुम अभी हमारे घर नहीं आई हो, लेकिन तुम पिछले 1 साल से हमारे घर में हमारे साथ हो। हम सबको बहुत आदत हो गई है तुम्हारी। ये शादी ना होने से सिर्फ जुनैद मुतासिर नहीं होगा, हम सब मुतासिर होंगे और तुम भी मुतासिर होगी। तुम्हें जुनैद से नाराज़गी का हक है, लेकिन इस नाराज़गी में कम से कम तुम्हें तो जुनैद जैसी कोई अहमकाना हरकत या कदम नहीं उठाना चाहिए।
वो उसे समझा रही थी। हम सब ने ही तुमसे उम्र के बारे में छुपाया, मगर ये इसलिए नहीं था कि हम तुम्हें धोखा देना चाहते थे। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम लोग तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे। उमर तो जुनैद का सिर्फ दोस्त है, मगर तुम तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। हमारे लिए किसकी अहमियत ज़्यादा है तुम अंदाज़ा कर सकती हो। जुनैद के लिए किसकी ज़्यादा अहमियत है ये भी तुम जान सकती हो। तुम्हें अगर ये नापसंद है कि उमर हमारे घर आए तो मैं उमर को मना कर दूंगी, वो घर नहीं आएगा। मगर जहाँ तक जुनैद और उमर की दोस्ती का ताल्लुक है उसको रहने दो लीज़ा। उनके इस ताल्लुक से तुम्हारी और जुनैद की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ। मगर इतनी छोटी छोटी बातों पर इस तरह रिश्तों को ख़त्म करना, कम से कम मैं तुमसे इसकी तवक्को नहीं करती। अलीज़ा, हम सब बहुत परेशान हैं, न सिर्फ हम बल्कि जुनैद भी। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी ख़त्म ना हो, सब कुछ वैसा ही रहे। जुनैद मेरे साथ आया हुआ है और वो तुमसे मदद करने के लिए तैयार है। अलीज़ा बिल्कुल लाजवाब थी। वो जुनैद के घर वालों का सामना करती को चाहिए कि उनसे बात करती, मगर जुनैद की अम्मी इस तरह अचानक उसके पास आ गई थी कि वो अपनी मुदाफ़ियत के लिए उनसे कुछ भी नहीं कह पाई थी। हमारी ज़िंदगी हमेशा से बड़ी स्मूथ रही है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह अचानक हमारी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस आएगा। वो एक बार फिर कहने लगी। अलीज़ा के असाब का बोझ बढ़ता जा रहा था। वहाँ बैठे एकदम उसे अपनी हर दलील बेकार और अपना एकदम बचकाना लगने लगा था। इसलिए हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला, मगर कुछ दिनों में नहीं अलीज़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मेरी फैमिली के साथ इतनी वाबस्तगी तो है कि तुम हमारी फीलिंग्स को समझ सको, इस शर्मिंदगी और बेइज्जती का अंदाज़ा कर सको जिसका सामना मेरी फैमिली को करना पड़ेगा। और सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी। मैं हैरान हूँ कि इतनी छोटी सी बात पर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया कि तुम इसके नताइज के बारे में नहीं सोचा था। अलीज़ा उनके एहसासात और ज़हनी कैफियत को समझ रही थी। वो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान थी। अलीज़ा के पास उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश बैठी रही। जुनैद की अम्मी बहुत देर तक उसे समझाती रही थी और शायद उसकी ये मुसलसल खामोशी उन्हें हौसला अफजा लगी थी। वो बहुत देर के बाद अगले दिन दोबारा आने का कहकर रुखसत हुई। जुनैद की अम्मी को अगर उसकी खामोशी उसका हथियार डाल देना लगा था तो वो वाकई ऐसा ही था। जिन बातों पर उसे अब पहले सोचना चाहिए था वो उनके बारे में अब सोच रही थी। इश्ताल और जल्दबाजी में किए हुए फैसले के मुज़मरात अब पहली बार उसके सामने आ रहे थे। ये यकीनन जुनैद की अम्मी की गुफ्तगू का नतीजा नहीं था, अगरचे उनकी गुफ्तगू ने उसकी कन्फ्यूजन और पछतावे में इजाफा किया था, मगर वो इस पछतावे का मूजब नहीं थी। उसे हर एक से इसी रद्द-ए-अमल की तवक्को थी, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद इस कदर शर्मिंदगी और नदामत महसूस करेगी। अगर दूसरों को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी दूसरों की परवाह नहीं होनी चाहिए। उसने वो नोटिस शाया करवाने से पहले सोचा था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दूसरों की परवाह करने के लिए वो मजबूर है। कम से कम वो हर शख्स को नाराज़ करके खुश रहने वालों लोगों में शामिल होने की सलाहियत या अहलियत नहीं रखती थी। और जुनैद क्या वाकई उसके लिए कोई एहसास रखती थी, उस शख्स के लिए जिसे वो चंद हफ्तों में अपने हमसफ़र के तौर पर देख रही थी, जिसके साथ वो पिछले 1 साल से मंसूब थी, जिसके साथ वो मुस्तकबिल को प्लान करती फिर रही थी। वो बार बार खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जुनैद को उससे मोहब्बत नहीं है, उससे शादी सिर्फ उम्र की ख्वाहिश का एहतराम था। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दूसरी तरफ जो कुछ भी था, कम से कम उसके लिए जुनैद कोई आम शख्स नहीं रहा था। वो उसे बार बार याद आ रहा था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा और इश्ताल ख़त्म हो रहे थे। अगले 2-3 दिन जुनैद के घर वाले आते रहे। जुनैद बार बार फ़ोन करता रहा। नाना उसे समझाती रही, समीना अपनी मजबूरियाँ उसे बताती रहीं। सिकंदर ने कराची से लाहौर आकर उस सारे मामले पर उससे बात की। उसने चौथे दिन हथियार डाल दिए। उसने इतराफ़ किया था वो प्रेशर के सामने नहीं टिक सकती, वो मजबूत नहीं थी। अगर वो ऐसी कोशिश कर भी लेती तो भी क्या, वो जुनैद और उसकी फैमिली के बगैर रह सकती थी? वो नहीं रह सकती थी। वो उन्हें भूल नहीं सकती थी। वो उन्हें काट कर अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकती थी। नानू ने उसके फैसले पर सुकून का सांस लिया था। उसके इस फैसले से सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना उन्हें ही करना पड़ता था और खुश थी कि वो बच गई। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, जुनैद ने फ़ोन पर उससे कहा था। इसकी ज़रूरत नहीं है, अलीज़ा ने जवाब में कहा। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, मैं जानती हूँ, उसने मुख्तसरन कहा। लास्ट फ्यू डेज वर नाइटमेयर, आई एम हैप्पी।
आई एम आउट ऑफ इट। वो उसके लहजे से उसके सुकून और इत्मीनान का अंदाज़ा कर सकती थी। जुनैद, आपने एक हकीकत मुझे बता दी, एक मुझे आपको बतानी है कि हम कल मिल सकते हैं, अलीज़ा ने कहा। कल? कल नहीं, कल मैं मसरूफ़ होऊंगा। जुनैद को याद था कि कल उमर लाहौर आ रहा था और उसे उमर के साथ होना था। परसों मिलते हैं। ठीक है, परसों मिलते हैं। उमर और जुनैद रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। फिर शादी की नई डेट कब तय हो रही है? उमर ने कांटे से मछली का एक टुकड़े को मुंह में डालते हुए कहा। परसों बाबा जा रहे हैं अम्मी के साथ, उसने सलाद का एक टुकड़ा उठाते हुए जवाब दिया। हो सकता है पुरानी वाली डेट ही दोबारा रख दें, अभी भी दिन तो हैं। एक नोटिस और देना पड़ेगा, जुनैद ने कहा। नहीं यार, डेट चेंज करो, इस तरह तो हम लोग बड़े मशकूक हो जाएंगे कि पता नहीं पहले क्यों शादी कैंसिल कर रहे थे और अब क्यों दोबारा इस डेट पर कर रहे हैं। लोग यही समझेंगे कि लड़की ने कोई मसला खड़ा किया है। उमर हल्के फुल्के अंदाज में बोला। तो मसला खड़ा तो लड़की ने ही किया था, जुनैद ने कहा। नहीं, जो भी था, हम लड़की वाले हैं, हमारी पोजीशन ख़राब होगी, उमर ने उसके जुमले को नज़रअंदाज करते हुए कहा। इस सारे मामले में लड़की वालों का रोल तो हमारा रहा है। तुम लोगों को क्या परेशानी हुई है? सब कुछ तो हमें ही करना पड़ा है, मिन्नत, समाजत, सफाइयाँ, वजाहतें और क्या कुछ। उमर ने मछली खाते खाते नज़रें उठाकर उसे देखा। यू डिज़र्व इट। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, क्योंकि किया धरा तो तुम्हारा ही था, उसने संजीदगी से जुनैद से कहा। मैंने तुम्हें मना किया था कि उसको मेरे। जुनैद ने उसकी बात काट दी। तुम चोर हो, डाकू हो, क्या हो कि मैं तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक को उससे छुपाता? मैं पुलिस वाला हूँ और वो मुझे इन दोनों से ज़्यादा बुरा समझती है। उमर हंसते हुए दोबारा अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जे हुआ। अगर किसी शख्स से मोहब्बत हो तो उससे वाबस्ता हर चीज़ से मोहब्बत हो जाती है। उमर ने खाना खाते हुए बेइख्तियार कहका लगाया। जुनैद उसके कहके पर कुछ झेप गया। इससे ज़्यादा घिसा पिटा जुमला तुम इस मौके पर नहीं बोल सकते थे। ये कहाँ से पढ़ लिया तुमने? जिससे मोहब्बत हो उससे वाबस्ता हर चीज़ से मोहब्बत हो जाती है। वो अब भी उसके फेफड़े पर महफूज हो रहा था। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है। तो आपने गलत सुना है जुनैद इब्राहिम साहब, ऐसा तो ख्वारों के ज़माने का इंसान भी नहीं करता होगा, और आप बैठे हैं एक जदीद दौर में। ज़माना बदला है, ताल्लुक़, एहसासात और जज्बात तो नहीं बदले। ये भी तुम्हारी ज़ाती राय है। मशीनी दौर के इंसान के जज्बात भी बदल चुके हैं। जो भी है, उसको मुझसे वाबस्ता लोगों की परवाह करनी चाहिए और तुम मुझसे वाबस्ता हो। ओ भाई, क्यों करनी चाहिए? क्या तुम ऐसा क्या करते हो? जुनैद ने एक बार फिर उसकी बात काटी। मैं इन तमाम लोगों से मोहब्बत करता हूँ जिनसे वो करती है। अच्छा, तो फिर तुम्हें इन तमाम लोगों से नफरत भी होनी चाहिए जिनसे वो करती है। जुनैद लाजवाब हो गया। उमर एक बार फिर इत्मीनान से मछली खाने में मसरूफ़ था। आसमान अपनी जगह छोड़ देगा, ज़मीन अपनी जगह से हट जाएगी, मगर मुझे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि तुम अलीज़ा के खिलाफ कुछ कहोगे और उसके खिलाफ मेरी हिमायत करना तो वैसे ही एक ख्वाब है। जुनैद ने अपनी प्लेट में पड़ा हुआ चम्मच उठाते हुए कहा। उमर उसकी बात पर मुस्कुराया। दुरुस्त, तुम ये कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली का स्लोगन है वी आर ऑलवेज राइट, और अपनी फैमिली के एक मेंबर के खिलाफ इस तरह रेस्टोरेंट में बैठकर मैं बातें करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जुनैद ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ एक गहरा सांस लेकर अपनी प्लेट में कुछ सॉस और डाली। उमर मुस्कुराने लगा। तुम्हारी ये कज़न? जुनैद ने कुछ कहना चाहा। उमर ने भवें उचकाते हुए उसकी बात काटी। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है, मेरी कज़न?